कोरस नंबर 4। जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द अर्थ। और परमेश्वर की आराधना बड़े आनंद के साथ और बड़े उत्साह के साथ हम जोर से करेंगे। जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द अर्थ। जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द अर्थ। Jesus Christ is the Lord of all the earth. Jesus Christ is the Lord of all the earth. Only one God over the nation. Only one Lord of all. In no other name is there salvation. Jesus is Lord of all. यीशु सबका प्रभु है, यीशु सबका प्रभु है, पृथ्वी का प्रभु। 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 एक ही ईश्वर सारे देशों पर, एक ही प्रभु सबका। और किसी नाम में उद्धार नहीं है, यीशु सबका प्रभु है। गीत नंबर 5। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. गीत नंबर 5। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से। सारी आशा तुझ में है, मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल है तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में, तुझ में। कोरस नंबर 25। Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy
given. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. धन्यवाद, धन्यवाद आभारी दिल से दो, धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु ख्रिस्ट अपना पुत्र। धन्यवाद आभारी दिल से दो, धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु ख्रिस्ट अपना पुत्र। और आप कहे कमजोर मैं बलवान, कहे गरीब मैं धनवान, उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए। और आप कहे कमजोर मैं बलवान, कहे गरीब मैं धनवान, उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए। दो धन्यवाद। Chorus number 24. Fear not, I am with you, fear not. Fear not, for I am with you, fear not. For I am with you, fear not. For I am with you, says the Lord. Fear not, for I am with you, fear not. For I am with you, fear not. For I am with you, says the Lord. I have redeemed you, I have called you by name. Child, you are mine. When you walk through the waters, I will be there, and through the flame, you will not be drowned, you will not be burned, for I am with you. Fear not, for I am with you, fear not. For I am with you, fear not. For I am with you, says the Lord. Fear not. For I am with you, fear not. For I am with you, fear not. For I am with you, says the Lord. I have redeemed you, I have called you by name. Child, you are mine. When you walk through the waters, I will be there, and through the flame, you will not be drowned, you will not be burned, for I am with you. डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, यह कहता है प्रभु। डर मत,
मैं तेरे साथ हूँ डर मत, मैं तेरे साथ हूँ डर मत, या कहता है प्रभु। तुझे छुड़ाया नाम से बुलाया, तू मेरा है। जब तू पानी में चलेगा होऊंगा मैं वहाँ, और आग में तू नहीं जलेगा, तू नहीं डूबेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ डर मत, 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 या कहता है प्रभु। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ डर मत, मैं तेरे साथ हूँ डर मत, मैं तेरे साथ हूँ डर मत, या कहता है प्रभु। तुझे छुड़ाया नाम से बुलाया, तू मेरा है। जब तू पानी में चलेगा होऊंगा मैं वहाँ, और आग में तू नहीं जलेगा, तू नहीं डूबेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ डर मत, 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 यह कहता है प्रभु। 27 नंबर गीत को हम गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आई एम द गॉड दैट हील दी। चारों तरफ महामारी फैला है, बहुत सारे लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। इस गीत को विश्वास के साथ गाएं, विश्वास के साथ सुने और अपनी आत्मा प्राण और शरीर में चंगाई को रिसीव करें। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आई एम द गॉड दैट हील दी, I am the Lord your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord your healer. You are the God. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord my healer. I am the God. I am the God that healed thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. You are the God. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord my healer. स्वर्ग की वस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की वस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की वस्तु मुझ पर बरसा दे। प्रभु मेरा जीवन
तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊँचा ऊँचा तेरा नाम रहे, प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊँचा ऊँचा तेरा नाम रहे, और ऊँचा ऊँचा तेरा नाम रहे। अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे। आज के शिक्षा के लिए हम निकालें रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय। नया नियम में रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 19वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 6 अध्याय 19 पद में, ये रेफरेंस गलत हो गया है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 21 और 22 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु हमारे मध्य में उपस्थित हो और हम में से हर एक को अपनी आत्मा का ताज़ा अभिषेक प्रदान कर। परमेश्वर तेरी आत्मा नदी के जल के समान बहने पाए। वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने लहू में ढांपिए, मेरे साथ खड़ा होइए, वेदी के अंगारों से मेरे मुंह को स्पर्श कीजिए और मेरे मुंह में होकर परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कीजिए। परमेश्वर मुझ में होकर अपने लोगों से मुलाकात और बातचीत कीजिए। अपने अनॉइंटिंग पावर को रिलीज कीजिए। जहाँ तक आपकी आवाज़ जाता है परमेश्वर तेरा अभिषेक रिलीज हो। हर एक सुनने वाले लोग अपने जीवन में तेरे अभिषेक को प्राप्त करें, तेरी चंगाई, तेरे छुटकारे को, तेरे जीवन को, बहुतायत की आशीष को प्राप्त करने पाए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुंचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, हमारे जीवन से, हमारे आसपास क्षेत्र से यीशु मसीह के नाम से दूर चले जाए। संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। हम रविवारी आराधना में श्रृंखलाबद्ध रीति से हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इन क्राइस्ट रेवलेशन। इन क्राइस्ट रेवलेशन उसका पार्ट 12 मसीह में प्रकाश भाग 12 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। और बाइबल में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आज का संदेश का जो शीर्षक है, हु वाज जीसस, हु वाज जीसस, यीशु कौन था। आज हम लोगों ने यीशु कौन है हम नहीं सीखेंगे, यीशु कौन था, यीशु मसीह कौन था जिसका हमने अभी जन्मदिन मनाया है। यीशु कौन था जो कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। और उसके बाद हम सीखेंगे यीशु मसीह कौन है। कौन था यीशु मसीह जो इस संसार में मानव का देह धारण किया। कौन था यीशु मसीह जो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दिया। परमेश्वर इस संसार में दो मनुष्यों पर अपना ध्यान लगाया। प्रथम आदम के ऊपर जो अदन की बाग में था, और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जो कुंवारी मरियम के द्वारा से मानव का देह धारण किया। परमेश्वर ने इन दो मनुष्यों पर, दो आदम के ऊपर परमेश्वर ने अपना ध्यान लगाया। प्रथम आदम मिट्टी से बनाया गया था, वो उसका शरीर मिट्टी से था और वो मिट्टी में मिल गया। दूसरा आदम स्वर्ग से आया, वो आत्मिक रूप से वो मुर्दों में से जिलाया गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। पहला आदम पृथ्वी का था, दूसरा आदम स्वर्गीय है। आदम के द्वारा से इस संसार में पाप और मृत्यु आई, और दूसरे आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से धार्मिकता और जीवन आया। आदम में सब लोग मरते हैं और उसी प्रकार से दूसरे आदम में सब लोग जिलाए जाते हैं, हर एक लोग जिलाए जाएंगे। तो परमेश्वर दो मनुष्यों पर ध्यान लगाया। प्रथम आदम में सारे मानव जाति था, आदम सारे मानव जाति का प्रतिनिधि था, और उसी प्रकार से दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का प्रतिनिधि है। यीशु संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रतिनिधि बना, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना। उसे परमेश्वर की ओर से ये अधिकार प्राप्त था कि सारे मानव जाति का वो अगुवा बने, सारे मानव जाति का चरवाहा बने, सारे मानव जाति के पाप का भुगतान वो अपने ऊपर ले, उनके पाप का मृत्यु अपने ऊपर ले, उनके गरीबी का श्राप अपने ऊपर ले, उसके बीमारी के सारे दुर्बलता अपने ऊपर ले, और वो सारे मानव जाति के बदले में वो नरक में जाकर मृत्यु का स्वाद चखे। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से ये अधिकार प्राप्त था कि वो सारे मानव जाति का प्रतिनिधि बने, उनका अगुवा बने। और यूहन्ना 10 में प्रभु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। परमेश्वर जब कोई नियम बनाता है तो परमेश्वर उसका पालन भी करता है। परमेश्वर जब कोई नियम बनाता है तो परमेश्वर उसका पालन करता है। परमेश्वर अपने नियम को कभी भी नहीं बदलता, परमेश्वर अपने वचन को कभी चेंज नहीं करता। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, धरती और आसमान टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया है। सारे मानव जाति आदम में पाप और मृत्यु के अधीन हो गए, तो परमेश्वर ने दूसरे आदम को भेजा जो मनुष्य का अगुवाई करे, मनुष्य का प्रतिनिधि बनकर उनके जीवन के सारे पाप को और सारी बीमारी को, सारे गरीबी को, सारे श्राप को, मृत्यु को दूर करके वो जीवन का रास्ता बनाए। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए प्रतिनिधि बनकर आया, रिप्रेजेंटेटिव बन करके आया। जो प्रतिनिधि होता है तो प्रतिनिधि के लिए जो शर्त है, पहला शर्त वो उसी की समानता में हो, जो जिस समूह का वो प्रतिनिधित्व करना चाहता है वो उसी की समानता में हो और उसी के समूह में हो। परमेश्वर को मानव जाति का प्रतिनिधि बनने के लिए उसको स्वयं इंसान बनना पड़ा। हमारे जैसा इस संसार में उसको जन्म, मानव का देह धारण करना पड़ा। हमारे बीच में वो डेरा किया, हमारे बीच में वो निवास किया, हमारे समान वो जिंदगी जिया, हमारे समान वो दुख सुख का अनुभव प्राप्त किया। जो प्रतिनिधि होता है उसको उसी की समानता में, उसी के समूह में होना चाहिए। और दूसरा, उसे नियम के अनुसार
वैधानिक रूप से अधिकार मिला हो। प्रभु यीशु मसीह अचानक से नहीं आया, परमेश्वर ने उसके आने के लिए पहले से ही भविष्यवाणी किया गया था, उसके आने की घोषणा डिक्लेरेशन पहले से था। प्रभु यीशु मसीह अचानक नहीं आया, वो लीगल वे पे आया, वैधानिक रूप से आया और वो परमेश्वर की ओर से मानव का प्रतिनिधि बनकर के इस संसार में देह धारण किया ताकि वो मानव के रूप से बोल सके, मनुष्य की ओर से बोल सके। जब शैतान कहता है तो पापी है, तो यीशु मसीह कहता है मैंने इसके पाप के मजदूरी मृत्यु चुका दिया है। जब शैतान बोलता है तू रोगी है, तो हमारा प्रतिनिधि यीशु मसीह कहता है मैंने इनकी सारी दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया है। जब शैतान कहता है तू कंगाल है, तो यीशु मसीह कहता है मैंने इसे कंगालीपन को अपने ऊपर ले लिया है, अब वो धनवान है। जब शैतान कहता है तू श्रापित है, तो यीशु मसीह कहता है, हमारा प्रतिनिधि कहता है मैंने इनके सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया है, अब ये आशीष के वारिस हैं, अब ये परमेश्वर के संतान है। तो हमारा प्रतिनिधि प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर से बोलता है। वो इस दुनिया में मानव का देह धारण किया, हमारे लिए वो इस संसार में दुख सहा, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ दिया गया, मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा महायाजक हमारी ओर से बोलता है और वो कहता है तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। शैतान के हाथ में मनुष्य का जीवन है, शैतान के हाथ में मनुष्य का जीवन है। पाप और मृत्यु मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है, गरीबी और बीमारी मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है। जो भी मनुष्य पैदा होता है वो शैतान के स्वभाव में पैदा होता है। हमारे बच्चों को गलत काम करना कौन सिखाता है? उसके ब्लड में है, और इसलिए बोलते हैं हमारा बच्चा बहुत शैतान हो गया है। एक्चुअली वो शैतान का ही बच्चा है, शैतान के स्वभाव में पैदा हुआ है, और इसलिए प्रभु ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। जो भी मनुष्य पैदा होता है वो शैतान के स्वभाव में पैदा होता है। शैतान ने एक नियम के अनुसार धोखे से आदम के द्वारा संपूर्ण अधिकार ले लिया। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, नर और नारी को बनाया, उसको आशीष दिया और कहा फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो। आदम में परमेश्वर का जीवन था, परमेश्वर का स्वभाव था, स्वतंत्र इच्छा था, परमेश्वर की धार्मिकता था। आदम और हवा परमेश्वर के द्वारा से इस पृथ्वी पर नियुक्त किया गया था, उनको पूरा अधिकार दिया गया था, और शैतान ने परमेश्वर के नियम का इस्तेमाल किया। परमेश्वर की योजना था कि मैं एक एक मनुष्य को नहीं बनाऊंगा, मैं एक मनुष्य को बनाऊंगा, उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। आदम हवा पहले दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, तो परमेश्वर ने उनको दोनों को अलग किया, नर और नारी करके अलग किया। और आदम के पास जब लाया हवा को, तो आदम कहता है मेरी हड्डी में का हड्डी, मेरी मांस में का मांस है, ये नर से निकला है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। पहले आदम हवा दोनों जैसा पसली जुड़ एक साथ जुड़े हुए थे, दिखाई नहीं दे रहा था, तो परमेश्वर ने उसको अलग किया ताकि वो एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे को पहचान सके, एक दूसरे के साथ संगति कर सके, एक दूसरे को प्रेम कर सके और एक दूसरे को संतुष्ट कर सके। परमेश्वर की योजना था आदम हवा के द्वारा से इस संसार में मानव जाति को उत्पन्न करना। जितने भी इस संसार में आदम हवा के द्वारा से संतान उत्पन्न होते वे सब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होते, परंतु शैतान ने इस योजना को जाना और शैतान ने इसी फार्मूले को इस्तेमाल किया। यदि आदम हवा मेरे अधीन हो जाते हैं, यदि आदम हवा मेरे गुलाम बन जाते हैं, तो सारे मानव जाति मेरे गुलाम हो जाएंगे, सारे मानव जाति पर मेरा राज्य, मेरा हुकूमत चलेगा। शैतान ने एक नियम के अनुसार धोखे से आदम का सारा अधिकार ले लिया और वो इस संसार का ईश्वर बन गया। शैतान इसके लिए परमेश्वर के नियम का इस्तेमाल किया। आदम हवा में सारे मानव जाति था, संपूर्ण मानव जाति आदम हवा में था, और आदम और हवा ने अपने आप को शैतान के हाथ में समर्पित कर दिया। आदम हवा ने पाप के लिए अपने आप को बेच दिया, और आदम और हवा जब आदम के गुलाम बन गए तो सारे मानव जाति आदम और हवा के साथ शैतान के गुलाम बन गए। आदम ने पाप किया तो सारे मानव जाति ने पाप किया। आदम और हवा परमेश्वर से दूर हुआ, संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गया। आदम ने अपने आप को पाप के लिए द्वार बन गया,
मृत्यु का भागी बन गया। शैतान इस पृथ्वी का ईश्वर बन गया। सारे मानव जाति के ऊपर शैतान का राज्य आ गया। शैतान क्यों सफल हुआ? शैतान अपनी योजना में क्यों सफल हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर के नियम का इस्तेमाल किया। परमेश्वर अपना नियम नहीं बदलता है। परमेश्वर ने कहा आदम और हवा के द्वारा से मैं बहुत सारे मानव जाति को उत्पन्न करूंगा। तो आदम पाप किया, उसके बावजूद भी परमेश्वर अपना नियम नहीं बदला। उसके द्वारा से पापी संतान पैदा होंगे और होते रहेंगे, शैतान के स्वभाव में पैदा होंगे, लेकिन मैं उसके पाप की मजदूरी मृत्यु को स्वयं गले से लगाऊंगा और उनको मैं पाप से और मृत्यु से छुड़ा लूंगा। मैं उनके लिए मार्ग बनाऊंगा कि वो फिर से मेरा जीवन को प्राप्त कर ले। परमेश्वर अपना नियम कभी नहीं बदलता। और यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, व्यवस्था का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सफल बनेंगे। शैतान जब परमेश्वर के नियम का इस्तेमाल किया, वो सफल हो गया। वो इस संसार का ईश्वर बन गया। संपूर्ण मानव जाति के अंदर में शैतान का स्वभाव आ गया। और तब परमेश्वर ने मनुष्य के बदले में स्वयं पाप की मजदूरी मृत्यु को गले से लगाया। पाप का भुगतान मृत्यु, मानव जाति को मृत्यु मिलना था, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया था। परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति से प्रेम किया और उसके बदले में मृत्यु को गले से लगाने के लिए, पाप के मजदूरी मृत्यु को दंड भुगतने के लिए वो स्वयं हमारे बदले में इस संसार में मानव का देह धारण करने किया और हमारे लिए वो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। हमारे लिए वो अधोलोक में चला गया और मृत्यु का स्वाद चखा। सारे मानव जाति के बदले में पाप की मजदूरी मृत्यु का दंड प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। जो बदले में सब्स्टिट्यूट होता है, बदले में एग्जाम्स में हम किसी स्टूडेंट के बदले में एग्जाम नहीं लिख सकते हैं, उनको खुद लिखना पड़ेगा। लेकिन जो दंड है वो, यदि मेरी बेटी ने वहां स्कूल का कोई कुर्सी या कोई तोड़ फोड़ कर दिया तो पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। तो पनिशमेंट जो जुर्माना है वो उसके माता पिता चुका सकते हैं। तो हमारे आदि माता पिता आदम हवा ने गुनाह किया और गुनाह का दंड था मृत्यु। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं उसके बदले में मृत्यु को गले से लगाता हूँ, मैं उसके लिए मरूंगा, मैं उसके लिए नरक में जाऊंगा और मैं उसको मृत्यु से स्वतंत्र करूंगा, आजाद करूंगा। यदि वो मनुष्य के बदले में उसको दंड भुगतना था तो उसको मनुष्य बनना था, ईश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। परमेश्वर जो आत्मा है, जो स्वर्ग में रहता है, उसको एक साधारण मनुष्य के समान इस संसार में मानव का देह धारण करना था। ही मस्ट बी ए मैन, उसको मनुष्य होना था। दूसरा, उसको स्वेच्छा से इस बात का निर्णय लेना था कि मैं उसके बदले में आऊंगा। उसको स्वेच्छा से निर्णय लेना था। प्रभु ने कहा कोई मेरा प्राण नहीं लेता है, मैं अपना प्राण स्वयं देता हूं, मैं अपना प्राण स्वयं देता हूं। प्रभु इस मसीह स्वेच्छा से अपने आप को समर्पित कर दिया। मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु इस मसीह स्वेच्छा से हमारे बदले में पाप के लिए अपना प्राण दे दिया, कुर्बान हो गया, मजदूरी, पाप की मजदूरी मृत्यु को गले से लगा लिया। और तीसरी बात, जो हमारे बदले में हमारा जो प्रतिनिधि है उसको पाप से आजाद होना चाहिए था। जो भी स्त्री और पुरुष से उत्पन्न हो रहा था वो शैतान के स्वभाव में पैदा हो रहा था, शैतान का संतान था स्वभाव से, तो उसको पाप से आजाद होना था। मतलब उनके अंदर में पुरुष का कोई बीज नहीं होना था। और इसलिए हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, तो कुंवारी मरियम के गर्भ में परमेश्वर के वचन देह धारण किया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, उसके अंदर में मनुष्य का स्वभाव नहीं था, उसके अंदर में परमेश्वर का स्वभाव था, परमेश्वर का जीवन था। उसे पाप से स्वतंत्र होना था। 3 शर्त था उसके लिए, उसे मनुष्य होना था। दूसरा, उसको स्वेच्छा से इस बात का निर्णय लेना था कि मनुष्य के बदले में मैं पाप को, मृत्यु को गले से लगाऊंगा। और तीसरा, उसको पाप से अज्ञात होना था, निर्दोष होना था। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया, परंतु हमारे लिए वो पापी बन गया, हमारे लिए वो पाप बन गया, हमारे लिए वो पाप का भुगतान, मजदूरी को प्राप्त किया। पाप और मृत्यु परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है। अभी जो गीत आप लोगों ने गाया, यीशु मसीह मेरे लिए
अच्छा है, मेरे लिए भला है और मेरे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर के स्वभाव में कोई पाप नहीं है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवन उसमें रहता है, वो पाप कर ही नहीं सकता है। जो नया जन्मा है, जो परमेश्वर के द्वारा से जन्मा है, वो पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का जीवन, उसका बीज, उसका सीड उसके अंदर में रहता है। शैतान कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो पाप नहीं कर सकता है। पाप परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है। मृत्यु परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है। परमेश्वर किसी को गरीबी के द्वारा से, बीमारी के द्वारा से, महामारी के द्वारा से, एक्सीडेंट के द्वारा से नहीं मारता है। परमेश्वर किसी को मृत्यु नहीं देता है। मृत्यु राज्य कर रहा है आदम के पाप के कारण से, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। अपने मृत्यु के द्वारा से पाप के डंक मृत्यु को तोड़ दिया है। अब मृत्यु का कोई डर नहीं रहा, मृत्यु का कोई भय नहीं रहा। प्रभु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो शरीर में मर जाए तो भी वो आत्मा में फिर से जी उठेगा और एक दिन उसके शरीर का पुनरुत्थान होगा। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप ये मत समझिए कि बीमारी यीशु मसीह ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। जब आप आर्थिक तंगी का सामना करते हैं तो ये मत समझिए कि आर्थिक तंगी, गरीबी, कंगालीपन यीशु मसीह ने दिया, परमेश्वर ने दिया है। जब आप क्लेश और उपद्रव का सामना करते हैं तो ये ना सोचे कि क्लेश और उपद्रव परमेश्वर मेरे जीवन में लाया है या परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर किसी को कंगाल नहीं करता, किसी को बीमार नहीं करता, किसी को एक्सीडेंट नहीं करता। हाँ, परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों को करने के लिए अनुमति देता है। परमेश्वर अनुमति देता है ताकि शैतान हमारे जीवन की परीक्षा ले, ताकि हम सिद्ध बने और धीरजवंत बने और हमारे पास हम विश्वास में परिपक्व बने। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी के जीवन में पाप रहे। परमेश्वर कहता है, मैं तो पवित्र हूं, तो तुम भी पवित्र बनो। मनुष्य जिंदगी भर पवित्र नहीं बन सकता है, कितना भी वो कोशिश कर ले पवित्र नहीं बन सकता है। लेकिन पवित्र परमेश्वर कहाँ रहता है? मेरे और आपके भीतर में रहता है। पवित्र करने वाला परमेश्वर मेरे अंदर में है। तो मेरी जो पवित्रता है वो यीशु मसीह की पवित्रता है। मेरी जो धार्मिकता है वो यीशु मसीह की धार्मिकता है। मेरा जो जीवन है वो यीशु मसीह का जीवन है। मेरा जो देह है वो उसका मंदिर है। तो हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। शैतान बोलता है नहीं तू पापी है, तो शैतान को बोलना पवित्र करने वाला यीशु मसीह मेरे अंदर में रहता है। मेरी पवित्रता यीशु मसीह की पवित्रता है, मेरी धार्मिकता यीशु मसीह की धार्मिकता है, मेरा जीवन यीशु मसीह का जीवन है। मैं परमेश्वर का संतान हूं। परमेश्वर किसी के जीवन में पाप मृत्यु को नहीं लाता। पाप मृत्यु मनुष्य के जीवन में प्रभाव डाले, परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ बहुतायत का जीवन को हम प्राप्त करें। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए योजना बनाया। क्या योजना था? फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो और इस पृथ्वी पर अधिकार रखो। उनको परमेश्वर कहा बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई, बी डोमिनियन। तुम फलवंत बनो, बढ़ोतरी करो और इस पृथ्वी पर राज करो। इस पृथ्वी को अपने समान इंसानों से भर दो। लेकिन आदम हवा शैतान के बहकावे में आ गया, शैतान का गुलाम बन गया। सारे मानव जाति शैतान के स्वभाव में पैदा हो रहे हैं। शैतान इस संसार का ईश्वर बन गया। तब भी परमेश्वर अपना योजना नहीं बदला, अपना नियम नहीं बदला। परमेश्वर ने आदम के साथ, आदम के सारे मानव जाति को पाप में गिरते हुए देखा। जब आदम को गिरते हुए देखा तो परमेश्वर ने सारे मानव जाति को पाप में गिरते हुए देखा और साथ ही साथ वो यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर प्राण देते हुए भी देखा। जब पाप में गिरते देखा तो सारे मानव जाति के लिए अपने आप को उसका कीमत चुकाते हुए भी देखा। स्वर्ग में ऐसा कोई भी कीमती चीज नहीं था जो पाप के मजदूरी मृत्यु चुका सके, जिससे उनका जुर्माना चुकाया सके। स्वर्ग में ऐसा कोई भी कीमती चीज नहीं था। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में ऐसा कोई भी कीमती चीज नहीं था जिससे कि पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया जा सके। स्वर्ग में कॉन्फ्रेंस हुआ, मीटिंग हुआ कि मनुष्य का जीवन शैतान के हाथ में चला गया है। अब मनुष्य को कैसे वहां से छुड़ाया जाए, और न्याय मांग करता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है।
परमेश्वर को मारा नहीं जा सकता है, परमेश्वर का लहू बहाया नहीं जा सकता है, और इसलिए उसको इंसान बनकर इस धरती पर आना पड़ा। इंसान के बदले में उनको दुख सहना पड़ा, इंसान के बदले में उनको अपना बलिदान करना पड़ा, लहू बहाना पड़ा और मृत्यु को गले लगाना पड़ा। जब मृत्यु ने मनुष्य जाति को मारा तो परमेश्वर ने उसका कीमत चुकाने के लिए स्वयं इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आ गया। वो हमारा ढाल बन गया, वो हमारा प्रतिनिधि बन गया। जब कोई खतरा आता है तो मम्मी पापा अपने बच्चों को क्या करते हैं? अपने गोद में छिपा लेते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, बाज पक्षी को देखता है तो अपने पंख फैला देता है और उसके बच्चे जो है उसके पंखों की आड़ में आकर सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं। परमेश्वर ने अपना बाँह फैला दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, मेरे पास आ जाओ और अपने पाप से, गरीबी से, बीमारी से और हर एक क्लेश और उपद्रव से, महामारी से तुम सुरक्षा प्राप्त कर लो। परमेश्वर के पास जाने के लिए, परमेश्वर का जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को एक रास्ता बनाना था, क्योंकि रास्ता जीवन पहुंचने के लिए, जीवन तक पहुंचने के लिए मृत्यु आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। पाप में जीवन है, शैतान का स्वभाव है, शैतान का जो मंजिल है वो नरक में है और मनुष्य नरक का भागी बन गया है। जीवन के रास्ते बंद है। प्रभु को जीवन के लिए एक रास्ता बनाना था, तो प्रभु ने कहा मैं रास्ता बनाऊंगा, मैं इनके पाप का जुर्माना, मृत्यु मैं चुकाऊंगा, इनके दंड मैं भुगतूंगा और मैं इनके लिए मार्ग बनाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण देकर हमारे लिए उद्धार का द्वार बना, हमारे लिए अपना प्राण देकर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पास जाने के लिए एक रास्ता बनाया। और वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने एक रास्ता बनाया ताकि हम परमेश्वर के जीवन को पुनः प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने एक रास्ता बनाया ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकें और परमेश्वर के साथ हम संगति कर सकें। परमेश्वर को, मानव जाति को वापस अपनी संगति में लेने के लिए एक प्रतिनिधि को भेजना पड़ा, क्योंकि मनुष्य के बदले में परमेश्वर को कीमत चुकाना था। और प्रश्न है, हाउ गॉड बिकम मैन? परमेश्वर कैसे मनुष्य बना? परमेश्वर मनुष्य कैसे बना? प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया। प्रभु यीशु मसीह शरीर में आया। कौन सा शरीर में आया? मानव के शरीर में आया। हम मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजे गए हैं। तो पहला आदम मनुष्य था, तो दूसरा आदम, अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य बनकर, मनुष्य के देह को धारण करके आया। वो कुत्ता बनकर या गाय बनकर या बैल बनकर या गधा बनकर या बंदर बनकर या हाथी बनकर या सांप बनकर नहीं आया। क्या बनकर के आया? इंसान बनकर के आया, ताकि हमारे बदले में स्वेच्छा से हमारे लिए वो पाप का जुर्माना चुका सके। प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर जो है मनुष्य बना। प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य बनना, प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य बनना, वो परमेश्वर को प्रकट करना था। यूहन्ना पहला अध्याय में हमने पढ़ा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में था, उसी ने उसको हम पर प्रकट किया। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव का देह धारण किया, किसको प्रकट करने के लिए? परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की स्वभाव को प्रकट करने के लिए। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा, जिसने मुझको देखा उसने परमेश्वर को देख लिया। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। जिसने मुझको देख लिया उसने पिता को देख लिया। तो प्रभु यीशु मसीह पिता को प्रकट करने के लिए इस संसार में आया। और ये घटना अनलीगल नहीं था, परंतु लीगल था। वैधानिक रूप से ये इतिहास में एक घटना घटी है। हम 2022 में, इसका मतलब है कि 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में यहूदिया के बैतलहम में कुंवारी मरियम के द्वारा से जन्म लिया। इतिहास दो भाग में बढ़ गया। ये वैधानिक रूप से एक घटना था। प्रभु यीशु मसीह नियम के अनुसार आया, अचानक से नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का आरंभ नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का आरंभ नहीं था। 1997 में मेरा विवाह हुआ, तो वो मेरा आरंभ नहीं था, मैं पहले से ही था।
मैं पहले से इस संसार में था। और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब मानव का देह धारण किया, वो उसका शुरुआत नहीं था, वो उसका आरंभ नहीं था, वो पहले से ही वो इस सृष्टि में था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो क्या कहा? उत्पत्ति 1 अध्याय 26 पद में, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। जब सृष्टि की रचना हुआ तो गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा, वचन बोला उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई और वचन देहधारी हुआ। तो वचन तो पहले से ही था, वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, वचन मानव का देह धारण किया। वो उसका शुरुआत नहीं था, वो उसका आरंभ नहीं था, वो तो पहले से ही अस्तित्व में था। यशायाह 9 अध्याय निकालिए, यशायाह 9 अध्याय उसका 6वां पद। और यहाँ पर भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में मानव का देह धारण करने से 400 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी किया, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ पर 5 नाम दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह कौन था? हु वाज जीसस? कौन था प्रभु यीशु मसीह? तो वो कौन था? वो अद्भुत परमेश्वर था, अद्भुत, वंडरफुल। दूसरा काउंसलर, युक्ति करने वाला था। तीसरा माइटी गॉड, पराक्रमी परमेश्वर। चौथा इटर्नल फादर, अनंत काल का पिता, एंड प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार था। यशायाह 7 के 14 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यशायाह 7 अध्याय 14 पद, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। यहां पर एक नाम और दिया गया है। कौन था यीशु मसीह? ही इज इम्मानुएल। वो इम्मानुएल है, वो हमारे साथ में हो गया, हमारे साथ हो गया, मानव बनकर हमारे साथ निवास किया, हमारे दंड अपने ऊपर ले लिया, हमारे सजा जो पाप की मजदूरी मृत्यु है उसका भुगतान किया और हमको परमेश्वर से मेल मिलाप कर दिया। अब वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में हमारे साथ रहने के लिए आ गया है। और इसलिए आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आप अकेले हैं इस संसार में, आपका कोई भी नहीं है, तब भी आप विलाप मत कीजिए, शोक मत मनाइए, रोइए मत। परमेश्वर हमारे साथ में और उसका वायदा है, मैं तुम्हें कभी भी न तो छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा, न कभी धोखा दूंगा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जब ईश्वर हमारे साथ में है तो हमको डरना नहीं है। वो कहता है, जब तू आग में होकर चले मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे साथ में रहूंगा। वो तुम्हें नहीं डुबा सकेगी, वो तुम्हें नहीं जला सकेगी, क्योंकि मैंने तुझको नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझको छुड़ा लिया है, तू मेरा है, तू मेरे लिए अनमोल है, मैं तेरे लिए अपना प्राण दे दिया हूं ताकि तुझको मुझ में जीवन मिले। तो हमको परमेश्वर ने इम्मानुएल दिया है, वो इम्मानुएल है जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। एक नाम और, मत्ती 1 अध्याय 21 पद, मत्ती 21वां अध्याय 1 अध्याय 21 पद, मत्ती 1 अध्याय 21 पद, वहां लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और यीशु के नाम का अर्थ होता है उद्धार करता, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, रक्षा करने वाला, चंगा करने वाला, जीवन देने वाला, आशीष देने वाला, छुटकारा देने वाला, हमारे जीवन का सब कुछ। परमेश्वर यीशु मसीह कौन था? तो यीशु मसीह मेरा उद्धार है, मेरा उद्धार करता है। तो 7 नाम यहां पर हम पाते हैं। पहला वंडरफुल, दूसरा काउंसलर, काउंसलर सलाह देने वाला, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर मतलब योद्धा। पुराने नियम में 430 साल तक इस्राएली मिस्र देश से गुलामी में थे। परमेश्वर सामर्थी है और वहां पर 10 आश्चर्य कर्म किए और मिस्र को दंड दिया
लाल समुद्र को 2 भाग करके इस्राएलियों को जंगल में ले आया और इस्राएलियों के विरोधियों को परमेश्वर ने समुद्र में डुबाकर नाश कर दिया। परमेश्वर योद्धा है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए फाइट करता है, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। वो पराक्रमी परमेश्वर है और इसलिए आंधी तूफान से ना डरें, महामारी से ना डरें, क्लेश उपद्रव से ना डरें और तंगी मुसीबत से ना डरें। परमेश्वर का केवल धन्यवाद करें, धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरे साथ में, तू पराक्रमी परमेश्वर है, मेरी समस्याओं से तू बड़ा है। केवल परमेश्वर का धन्यवाद करें, केवल परमेश्वर का धन्यवाद करें। समस्याओं को देख करके विलाप मत कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत। वो अनंत काल का पिता है, वो आपका पिता है, वो आपको आपके अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा। वो शांति का राजकुमार है, आपको सब प्रकार की शांति देगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसा संसार के लोग देते हैं वैसा नहीं, मैं तुमको अपनी शांति देता हूं। तुम्हारी सारी टेंशन, सारी समस्या, सारे परेशानी, सारे गरीबी, सारी बीमारी मुझको दे दो और तुमको मुझ में शांति मिलेगा, तुमको मुझ में शांति मिलेगा। वो शांति का राजकुमार है। हमारे अंदर में शांति है, हमारे अंदर में शांति है और बाहर अशांति है। चारों तरफ अशांति है लेकिन हमारे मन में शांति है। जब आपके मन में शांति है तो प्रभु का स्तुति गान करो, प्रभु के आनंद के साथ उसकी महिमा करो। और इम्मानुएल, गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ में, यीशु मसीह मुझ में है, यीशु मसीह मेरे ऊपर में है, वो मेरे सामने, वो मेरे दाहिने तरफ, वो मेरे बाएं तरफ, वो मेरे चारों तरफ है। वो मेरे चारों तरफ मेरी ढाल बनकर मेरी हिफाजत कर रहा है, वॉल ऑफ फायर बनकर मेरी हिफाजत कर रहा है। स्वर्गदूतों को पहरा बैठा दिया है, अपने लहू का बारा लगा दिया है। और इसलिए हमको डिक्लेयर करना है परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर ने कहा तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने वो 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे डेरे के निकट में नहीं आएगा। उसका नाम जीसस है, उसका नाम यीशु है। जब यीशु कहते हैं तो हमारे जीवन में छुटकारा आता है। आप हर एक शैतान कितना भी बांध के रखे रहे, कितना भी गरीबी से, कितना भी बीमारी से, कितना भी पाप से, श्राप से, बुरे आदत से छुटकारा बांध करके रखे रहे, जब आप यीशु कहेंगे, जब यीशु तो मेरा प्रभु है कहेंगे तो सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे पीतल के दरवाजे टूट जाएंगे, सारे लोहे के दरवाजे टूट जाएंगे। जो ऊंचा है वो नीचा हो जाएगा, जो टेढ़ा मेरा वो सीधा हो जाएगा, क्योंकि यीशु मार्ग है, यीशु द्वार है। जब यीशु कहते हैं तू मेरा प्रभु है, यीशु मसीह ने अपना जीवन तुझे सौंपता हूं, तू मेरा प्रभु है कहते हैं, तो आपके सारे दरवाजे टूट जाएंगे, सारे बंद दरवाजे टूट जाएंगे। प्रभु कहता मैं तेरे लिए पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, लोहे के बाड़े को तोड़ दूंगा और मैं तेरे लिए सीधा रास्ता बनाऊंगा। जहां कोई रास्ता नहीं है मत डर, मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा, मैं तेरा मार्ग हूं, तू मेरे पीछे चल। तो प्रभु यीशु मसीह कौन था? तो 7 नाम यहां पर है, अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, इम्मानुएल एंड जीसस। प्रभु ने कहा यशायाह 7 के 14 पद में, परमेश्वर आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। परमेश्वर खुद एक चिन्ह देगा। चिन्ह क्या है? चिन्ह कुंवारी का गर्भवती होना नहीं था। एक कुंवारी गर्भवती हो गई, ये कोई चिन्ह नहीं था, परंतु ये तो आश्चर्यक्रम था। एक कुंवारी गर्भवती हो गई, एक मेरिकल है, चमत्कार है। तो चिन्ह क्या है? चिन्ह स्वयं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का चिन्ह है। कुंवारी का गर्भवती होना एक आश्चर्य कर्म था। चिन्ह जो है इशारा करता है, चिन्ह जो है इशारा करता है। जैसे तारा ने इशारा किया, चिन्ह इशारा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इशारा किया परमेश्वर की ओर से, मैं परमेश्वर में हूं और परमेश्वर मुझ में, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में, मेरा वचन मेरा नहीं परंतु मेरे पिता का है, जो काम मैं कर रहा हूं मेरा काम नहीं परंतु मेरे पिता का काम है। तो मुझे ग्रहण करते हो तो मेरे पिता को ग्रहण करते हो। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का चिन्ह है। और इस संसार में, इस नए साल में आप कहें मैं और मेरा घराना परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार है। मैं और मेरे लड़के जो यहोवा ने मुझे सौंपे परमेश्वर की ओर से, जो सियोन पर्वत पर रहता है, मैं सारे इस्राएलियों के लिए, सारे मसीहों के लिए, सारे अन्य जातियों के लिए चिन्ह और चमत्कार हूं। जब कोई हमारे जीवन में आता है तो हम किसकी ओर इशारा करते हैं? यीशु की ओर। हमारा जीवन यीशु मसीह है,
हमारी आशीष प्रभु यीशु मसीह है, हमारी तंदुरुस्ती प्रभु यीशु मसीह है, हमारी भरपूरी प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का चिन्ह है। और आज परमेश्वर का चिन्ह कौन है? मैं और आप हैं। विश्वासी लोग परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार है। तो डिक्लेयर कर दें, आई एम साइन एंड वंडर्स, हियर आई एम। देख, मैं यहां, मैं और मेरे लड़के, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास करता है, जो सेनाओं का प्रधान है, मैं सारे इस्राएलियों के लिए, सारे दल्ली राजगढ़ के लिए, सारे मसीहों के लिए, सारे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए चिन्ह और चमत्कार हूं, साइन एंड वंडर्स हूं। चिन्ह जो है इशारा करते हैं, और परमेश्वर का चिन्ह प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह का जब हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब यीशु के पीछे चलते हैं तो हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। जब यीशु पर भरोसा करते हैं तो हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। यूहन्ना 14 के पहला पद में प्रभु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। प्रभु ने कहा, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। जो तुम्हें मेरा चेला जानकर एक कटोरा पानी भी पिलाता है तो वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएगा। तो हमको प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में चिन्ह और चमत्कार बनाया है। हम अन्य जातियों के लिए, मसीह समाज के लिए, पूरे देश के लिए परमेश्वर की ओर से चिन्ह और चमत्कार है। आपके जीवन में लोग किसको देखेंगे? यीशु मसीह को देखेंगे। लोग यीशु मसीह को देखेंगे। हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं तो हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं। मनुष्य के छुटकारे की योजना आरंभ हुआ। परमेश्वर ने जब आदम को पाप में गिरते देखा तो अपने आप को पाप का कीमत चुकाते हुए भी देखा। यह सब आत्मिक क्षेत्र में था। अब भौतिक क्षेत्र में परमेश्वर अपनी योजना को आरंभ कर रहा है। स्वाभाविक रीति से आरंभ हुआ। परमेश्वर ने छुटकारे के कार्य को करने के लिए कार्य आरंभ किया। आदम मानव जाति को पाप और मृत्यु की दशा में ले गया। आदम मानव जाति को मृत्यु की ओर ले गया और परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को वापस लाया, संपूर्ण मानव जाति को वापस लाया। और इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। अब अपनी संसारिकता से, पाप से, बुराई से, झूठ से मन फिराओ। सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार मतलब अच्छी समाचार। यदि कोई अच्छी समाचार है तो बताओ, बुरा समाचार है तो दुआ करो, अच्छे समाचार है तो सबको बताओ। यहां पर इतना पॉजिटिव केस, इतना पर यहां पर पॉजिटिव केस मत बताओ। आप ये बताओ कि यीशु मसीह चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुर्बल बना, हमारे लिए रोगी बना, हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए कोड़े के मार खाए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं। ये बताओ लोगों को कि यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो, यीशु मसीह के नाम से आप स्वस्थ हो। ये बताइए, गुड न्यूज बताइए, शुभ समाचार परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया है। बताइए लोगों को गुड न्यूज कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारा चंगा करने वाला ईश्वर है। वो कहता है, आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड योर हीलर। मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं, तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। मेरे नियम को मानोगे तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हारे बीच से रोग बीमारी को मैं दूर करूंगा। आदम ने मानव जाति को पाप की ओर, गरीबी की ओर, बीमारी की ओर, श्राप की ओर, मौत की तरफ ले गया, नरक की तरफ ले गया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको वहां से, मौत से निकाला। कुलुस्सियों 1:13 में लिखा है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अंधकार के सामर्थ्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, ट्रांसफर कर दिया। हम आदम के परिवार में थे और आदम के परिवार से परमेश्वर ने निकालकर हमको अपने प्रिय पुत्र के परिवार में लाया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब एक विश्वासी यीशु पर विश्वास करता है तो उसकी आत्मा नरक से निकलता है, उसके आत्मा का पुनरुत्थान होता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह नरक से निकला और उसके शरीर कब्र से निकला, उसका पुनरुत्थान हो गया, वैसी जब एक व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करता है, उसकी आत्मा नरक से निकलता है, उसके अंदर में स्वर्ग का जीवन आ जाता है। और इसलिए स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। इफिसियों 1 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय
10वां पद। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 10 पद। यहां लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। परमेश्वर का लक्ष्य सही समय आने पर अपनी योजना को पूरा करना था। परमेश्वर ने योजना बनाया था आदम हवा के द्वारा से इस संसार को मनुष्य जाति से भरना। मनुष्य जाति पापी बन गया, शैतान का गुलाम बन गया। परमेश्वर ने योजना बनाया, मैं स्वयं इंसान बन करके आऊंगा, उनका अधर्म को दूर करूंगा, उनका जुर्माना मैं खुद चुकाऊंगा और उनको मैं दाम दे करके मोल लूंगा, उनको वापस मैं एकत्रित करूंगा। जो स्वर्ग में है, जो इसके पहले मर गए हैं, उनको भी मैं वापस लाऊंगा। जो अधोलोक में है उनको भी लाऊंगा, जो पृथ्वी पर है उनको भी मैं लाऊंगा। और प्रभु ने कहा स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जो स्वर्ग में है उसको भी एकत्रित करे, जो पृथ्वी पर है उसको भी एकत्रित करे। परमेश्वर का लक्ष्य सही समय आने पर अपनी योजना को पूरा करना था। उसने योजना बनाई कि स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह में एकत्रित करे। उत्पत्ति 3 के 15 पद में परमेश्वर ने क्या कहा? सांप से और स्त्री से, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तो उसके एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के आने का पहला भविष्यवाणी उत्पत्ति 3 के 15 में कर दिया गया है। उत्पत्ति 3:15 में उद्धारकर्ता मसीह के आने का पहला प्रतिज्ञा को हम पाते हैं कि परमेश्वर स्त्री के वंश अर्थात एक कुंवारी के द्वारा से आएगा। उद्धारकर्ता कुंवारी के द्वारा से आएगा, मसीहा कुंवारी के माध्यम से आएगा। और गलतियों 4 के 4 पद में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ, जब उचित समय आया, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब उचित समय आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री के द्वारा से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, नियम के अनुसार वैधानिक रूप से उत्पन्न हुआ। पुराने नियम के लोग इसी मसीहा का इंतजार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह आने वाला था। प्रभु यीशु मसीह मानव का देह धारण करके जो स्त्री के द्वारा से उत्पन्न होने वाला था, पुराने नियम के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। एक मसीहा आएगा और हमको छुटकारा प्रदान करेगा। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 के 15 में कहा, मैं स्वयं आऊंगा और शैतान तेरे सर को कुचलूंगा और सारे मानव जाति को मैं वापस छुड़ाऊंगा, तो शैतान थरथराया, शैतान कांपने लगा और शैतान ने कहा कि जो भी अब स्त्री के द्वारा से उत्पन्न होगा मैं उसको नाश कर दूंगा। जो भी स्त्री के द्वारा से उत्पन्न होगा मैं उसको नाश कर दूंगा। और कई बार परमेश्वर की योजना लगभग समाप्ति की ओर था। कई बार परमेश्वर की योजना लगभग समाप्ति की ओर था। शैतान 2 चीजों को नाश करना चाहता था। शैतान 2 चीजों को नाश करना चाहता था। पहला, परमेश्वर का ज्ञान, लोग परमेश्वर को ना जाने, और दूसरा धार्मिकता का बीज या एक धर्मी परिवार। शैतान 2 चीजों को नाश करना चाहता है। पहला, परमेश्वर के ज्ञान को नाश करना चाहता है, झूठी शिक्षा फैलाना चाहता है, और दूसरा है धार्मिकता का बीज या एक धर्मी परिवार को नाश करना चाहता है। जो भी स्त्री के द्वारा से आने वाला था, शैतान उसको नाश करने वाला था। जो परमेश्वर चाहता था कि वो जिस परिवार से आए, जिस परिवार में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, वो परमेश्वर को जाने, वो परमेश्वर को जाने, और दूसरा वो एक धर्मी परिवार हो। एक पापी स्त्री के द्वारा से यीशु मसीह का जन्म नहीं हो सकता था। मरियम कुंवारी थी अर्थात पवित्र थी। जिस परिवार से मसीहा को आना था वो परमेश्वर का ज्ञान रखे, दूसरा वो एक धर्मी परिवार हो, तभी उसको परमेश्वर से जोड़ सकते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हम उत्पत्ति 4 अध्याय में आते हैं तो आदम के 2 पुत्रों की कहानी है, कैन और हाबिल। कैन और हाबिल परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए गए, और परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया, और कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। इस बात से कैन क्रोधित हुआ और अपने भाई हाबिल की हत्या कर दिया। एक भाई का हत्या हो गया और दूसरा हत्यारा बन गया। शैतान कैन के अंदर में घुस गया
और हाबिल की हत्या कर दिया। परमेश्वर की योजना को हम यहाँ पर असफल होते हुए देखते हैं। जो भी स्त्री के द्वारा से जन्म लेगा शैतान उसको नाश करने पर था। एक का हत्या हो गया और दूसरा हत्यारा बन गया। कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दिया। और उसके बाद हम उत्पत्ति 4 अध्याय के 25 पद में पाते हैं, परमेश्वर अपना नियम कभी नहीं बदलता। उत्पत्ति 4 के 25 में लिखा है, और आदम अपने पत्नी के पास फिर गया। आदम अपने पत्नी के पास फिर से गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहा कि सेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले में जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। कैन का वंश शारीरिक था और सेत का वंश आत्मिक था। आदम अपने पत्नी के पास में गया और एक पुत्र को प्राप्त किया और उसका नाम सेत रखा। कैन का खानदान संसारिक हो गया, शारीरिक हो गया, शैतानी हो गया और इसलिए परमेश्वर ने कैन को रिजेक्ट कर दिया। एक दूसरा वंश तैयार किया परमेश्वर ने, सेत का वंश, और सेत के वंश के द्वारा से हनोक आया। हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने हनोक को जीवित उठा लिया। हनोक के बाद मतुसेला हुआ जो सबसे अधिक दीर्घायु होकर के संसार में जीवन व्यतीत किया। उसके बाद लेमेक हुआ और लेमेक के बाद नूह हुआ। ये सब सेत के खानदान से आते हैं, ये आत्मिक खानदान से आते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था और नूह पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बना हुआ था। शैतान परिवार को बिगाड़ना चाहता है, परमेश्वर के ज्ञान को नाश करना चाहता है, परिवार में कलेश और उपद्रव डाल करके परिवार को बर्बाद करना चाहता है ताकि वो परिवार परमेश्वर की आराधना ना कर सके, परमेश्वर की इबादत ना कर सके। तो हम देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय में शैतान ने परमेश्वर की योजना को असफल कर दिया। परमेश्वर अपनी योजना में फिर से आया। आदम से कहा, तू अपने पत्नी के पास जा। एक वंश तैयार किया, सेत, और उसके द्वारा से हनोक, मतुसेला, लेमेक, नूह, ये सब सेत के वंश से आता है और इस प्रकार से इस पृथ्वी पर वंश बढ़ता गया। जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय में आते हैं, उत्पत्ति 6 का 6 पद को पढ़िए। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 6वां पद। उत्पत्ति 6 अध्याय का 6वां पद। हाँ, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। यहां पर हम पाते हैं यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। मनुष्य को बनाने से पछताया और वो अपने मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर शोकित हुआ, परमेश्वर मन में शोकित हो गया। परमेश्वर की योजना यहां पर लगभग फिर से समाप्ति की ओर है। ऐसे पापी लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए? मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने पछताया। केवल नूह धर्मी था। परमेश्वर को मनुष्य जाति में से किसी एक की आवश्यकता था जो परमेश्वर का ज्ञान रखे और जो एक धर्मी परिवार हो। यहां परमेश्वर का ज्ञान लगभग समाप्ति की ओर था। ये लोग आत्मिक रूप से पहले से मरे हुए थे और यहां पर वो सांसारिक रीति से मरने वाले थे। परमेश्वर ने कहा, अब ये मेरे सामने में इनको मिटाने का प्रश्न चिन्ह लग गया है, प्रश्न चिन्ह आ गया है। उत्पत्ति 6 में परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा से लोगों को नहीं मारा। उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर ने लोगों को जल प्रलय के द्वारा से नाश नहीं किया। ये सब तो आत्मिक रूप से पहले से ही मरे हुए थे और शारीरिक रीति से अब मरने वाले थे। उनका शरीर तो मिट्टी का था और मिट्टी में मिल गया। उनके अंदर में परमेश्वर का जीवन नहीं था। परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा से नाश नहीं किया। वे पहले से आत्मिक रूप से मरे हुए थे। उनका शरीर मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया। भजन संहिता 90 अध्याय, भजन संहिता 90 के 10 पद में मूसा कहता है, ये मूसा का भजन है, दाऊद का भजन नहीं है। निकालिए आप लोग भजन 90 अध्याय 10 पद। मूसा ने निराशा की दशा में कहा, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड
केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वही जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। किसने कहा मनुष्य की आयु 70 वर्ष होते हैं? मूसा ने कहा। किसने कहा? मूसा ने कहा, परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मनुष्य की आयु 70 साल होगी, मनुष्य की आयु 80 साल होगी। तो परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य की आयु कितने साल की होगी? 120 साल। परमेश्वर ने कहा मनुष्य की आयु 120 साल होगी। कहाँ लिखा है? उत्पत्ति 6 के 3 पद में। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसका आयु 120 वर्ष की होगी। मनुष्य की आयु 120 साल की होगी, परमेश्वर ने कहा। परंतु मूसा ने कहा, परमेश्वर 120 साल बहुत लंबा होता है, मनुष्य की आयु 70 साल या 80 साल होगी। तो मूसा ने किसके विषय में कहा? इस्राएलियों के लिए कहा। कब कहा? जंगल में कहा, क्योंकि जंगल में इस्राएलियों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं किया। और परमेश्वर ने कहा जितना भी 20 साल के ऊपर के हैं उनमें से कोई भी कनान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो मूसा ने कहा परमेश्वर ऐसा करते हैं, इनको 70 साल में निपटा देते हैं, 70 साल में इनको निपटा देते हैं, क्योंकि इनको लंबे समय तक इनको आगे लेके चलना ठीक नहीं है। तो मूसा भजन 90 के 10 में इस्राएलियों के विषय में कह रहा है, उन्होंने आज्ञा उल्लंघन के कारण से जंगल में तो मरना ही था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दिया जितने भी 20 साल के अधिक उम्र के हैं उनमें से कोई भी प्रतिज्ञा के देश में कनान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो भजन 90 का 10 परमेश्वर का वचन नहीं है, ये मूसा का वचन है। ये मेरे लिए आपके लिए नहीं है, ये इस्राएलियों के लिए था। तो आप कह सकते हैं मैं तो 100 साल तक जीऊंगा, मैं 40 साल में या 50 साल में या 70 साल में या 90 साल में मरने वाला नहीं हूं। मेरे लिए परमेश्वर ने 120 साल रखा है, 120 साल परमेश्वर ने नियुक्त किया है। यदि हम परमेश्वर को जानेंगे तो उसकी व्यवस्था को जानेंगे। परमेश्वर का नियम कभी नहीं बदलता। यदि मूसा कुछ कहता है और परमेश्वर कुछ कहता है, यदि मूसा कुछ कहता है और परमेश्वर कुछ कहता है, तो हमको परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना चाहिए। डॉक्टर कुछ कहता है, परमेश्वर कुछ और कहता है, तो हमको परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना चाहिए। आपके शरीर में कुछ और महसूस होता है लेकिन वचन कुछ और कहता है, तो वचन का अंगीकार करना चाहिए। उत्पत्ति 6 हमें बताता है कि मनुष्य जाति के साथ क्या हुआ था। सब ने अपना अपना मार्ग हो लिया था। शैतान मानव जाति को बिगाड़ना चाहता था ताकि स्त्री का वंश यीशु मसीह शुद्ध रूप से इस संसार में जन्म ना ले सके। शैतान स्त्री के वंश को बिगाड़ना चाहता था ताकि प्रभु यीशु मसीह ना आ सके। और उत्पत्ति 6 के 11 पद में लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। उपद्रव से भर गया था, पाप से भर गया था। क्या उपद्रव हुआ था, क्या पाप हुआ था वहां पर? तो पहला और दूसरा पद को पढ़िए। उत्पत्ति 6 अध्याय पहला और दूसरा पद में लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। स्वर्गदूतों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर है, तो जिससे चाहा उन्होंने विवाह कर लिया। ये लूसीफर के साथ जो स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए थे, अर्थात दुष्ट आत्माएं, वो मनुष्य का देह धारण करके स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया। वंश बिगड़ गया, सीड खराब हो गया। उनके द्वारा से जो बच्चे उत्पन्न होते थे वे बड़े डील डोल वाले होते थे। दानव पैदा हुए, राक्षस पैदा हुए, और राक्षस कुल में यीशु मसीह पैदा नहीं हो सकता था। शैतान पूरी तरह से मानव जाति को खराब कर दिया, सीड उनके बीज को खराब कर दिया। पतित स्वर्गदूत मनुष्य बनकर मनुष्य के पुत्रों से विवाह कर लिया। मनुष्य जाति का वंश बीज प्रदूषित हो गया, और इसलिए परमेश्वर ने कहा अब इनको प्रश्न समाप्त करने का प्रश्न मेरे सामने लग गया। ये तो मर गए हैं ऑलरेडी पहले से, बीज खराब हो गया है। अंडा जब खराब हो जाता है तो आमलेट नहीं बनाया जाता है, बदबू मारेगा, तो क्या करेंगे उसको? आप फेंक देंगे। क्यों फेंक देंगे? खराब हो गया है। ये लोग तो पहले से मरे हुए थे, शरीर में इनको तो मरना ही था। तो प्रभु ने कहा जल प्रलय के द्वारा से इनको नाश होने दो। परंतु 8 और 9 पद में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर
बनी रही, क्योंकि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। इतने खराब परिस्थिति में भी यहां पर एक व्यक्ति है नूह, जिसके ऊपर परमेश्वर का कृपा दृष्टि बना हुआ है। और नूह अपने समय में विश्वास योग्य व्यक्ति था, सच्चा व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे तब परमेश्वर का कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बना रहेगा। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में, खराब से खराब परिस्थितियों में भी जब हम वचन में बने रहेंगे, प्रभु के साथ चलते रहेंगे, तो परमेश्वर का कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बना रहेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का सारा ज्ञान एक मनुष्य नूह के ऊपर में आया। परमेश्वर का सारा ज्ञान नूह के ऊपर में आया। और नूह सेत का वंशज था, कैन का वंशज नहीं था, सेत का वंशज था। बाद में नूह भी शराब पीकर मतवाला हो गया। जल प्रलय के बाद नूह भी मतवाला हो गया। परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय से नाश होने से बचाया। परमेश्वर अभी भी बचाने का काम कर रहा है। परमेश्वर अभी भी हमको महामारी से बचाएगा, अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। यह परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर ने नूह को अवसर दिया कि 120 वर्ष तक प्रचार करता रहे। नूह को जहाज बनाने में 120 साल लगा और 120 साल तक प्रचार करता रहा, लोगों को मन फिराव का मौका देता रहा, लेकिन नूह के प्रचार से एक भी व्यक्ति ने मन नहीं फिराया। आज भी सुसमाचार प्रचार का काम बहुत जोरों से हो रहा है, लेकिन लोग मन नहीं फिरा रहे हैं, उपद्रव से भर गए हैं। जब उपद्रव से भर गए हैं तो आत्मा में तो मरे हुए हैं, शरीर में उनका मरना तय है। मौत के आंकड़े दिखते हैं तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उनको तो मरना ही था। शरीर आत्मा में तो मरे हुए थे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यदि वो मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तो वो अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जल प्रलय आया और नूह उसके परिवार को, 3 बेटे और 3 बहुओं, और नूह और उसकी पत्नी 8 प्राणी जहाज में परमेश्वर के जहाज का नक्शा दिया, जहाज बनाया और जल प्रलय से बच गए। वो जहाज स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह में प्रवेश कर जाइए, आप हर एक प्रकार के परिस्थितियों में आप सुरक्षित रहेंगे। वह हमारे लिए शरण स्थान है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए चरवाहा है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए सुरक्षित स्थान है। दूसरा व्यक्ति आया इब्राहिम। इब्राहिम के माता पिता, उनके पूर्वज मूर्ति पूजक थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, परंतु इब्राहिम अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करता था। अब्राहम मूर्ति पूजा नहीं करता था, इब्राहिम अनदेखे ईश्वर पर विश्वास करता था। और इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम से कहा, उत्पत्ति 12 अध्याय में, इब्राहिम तू अपने जन्मभूमि को और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझको दिखाता हूं। मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरे नाम को बड़ा करूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तेरे द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे। जब आप जीवते परमेश्वर की सेवा करेंगे, जीवते परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर आपको चुनेगा ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। इब्राहिम को अपने देश, अपना जन्मभूमि को छोड़ने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उनके पूर्वज क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, और इसलिए इब्राहिम को वहां से निकलना जरूरी था। और इब्राहिम के द्वारा से परमेश्वर काम करने लगा, परमेश्वर की योजना काम करने लग गया, परमेश्वर का ज्ञान इब्राहिम के द्वारा से अब बढ़ने लगा। एक और कैरेक्टर्स को बोल करके मैं समाप्त करूंगा, और वो है हन्ना। 1 शमूएल 1 अध्याय 11 पद। 1 शमूएल 1 अध्याय 11वां पद। यहां लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यहाँ पर एल्काना नाम का एक व्यक्ति है जिसके 2 पत्नी है, एक हन्ना और दूसरा पनिन्ना। हन्ना के पास पुत्र है, परंतु हन्ना के पास पुत्र नहीं है। पनिन्ना के पास पुत्र है, संतान है, परंतु हन्ना एक बांझ स्त्री है, दुखियारी है, उसके पास कोई संतान नहीं है, उसकी सौतन उसको चिढ़ाती है, समाज के लोग उसको बांझ कहते हैं। और हन्ना जो है परमेश्वर के मंदिर में जाती है
और परमेश्वर के मंदिर में जाकर हृदय की वेदना से, हृदय की गहराई से वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है और एक मन्नत मानती है। वो कहती है कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले, मुझे भूल ना जाए और मुझे एक बेटा दे, मुझे एक पुत्र दे, तो मैं उस पुत्र को जीवन भर के लिए, तेरी सेवा के लिए तुझको दे दूंगा, तुझको अर्पण कर दूंगी। यहां हन्ना एक मन्नत मानती है। यहां पर हन्ना एक मन्नत मानती है। सी मेड ए वाउ, वो एक प्रतिज्ञा करती है। सी मेड ए स्पेशल प्रॉमिस टू गॉड, वो परमेश्वर से एक विशेष प्रतिज्ञा करती है। क्या प्रतिज्ञा करती है? आई विल गिव हिम टू द लॉर्ड ऑल द डेज ऑफ हिज लाइफ। परमेश्वर तू मुझको एक बेटा दे, एक पुत्र दे, तो मैं अपने बेटे को जीवन भर के लिए तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। आई विल डेडिकेट हिम टू द लॉर्ड, मैं उसको तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। आई विल गिव हिम टू यू, मैं उसको तुझको दे दूंगी। ही विल बी यूअर्स हिज होल लाइफ, वो तेरा दास होगा जीवन भर के लिए। हन्ना परमेश्वर पर विश्वास करती थी और उसने प्रतिज्ञाबद्ध होकर परमेश्वर से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। यदि आज आपके जीवन में कोई समस्या है, आप बीमार हैं, डॉक्टर कहता है तुम्हारा जीवन नाश हो जाएगा, तुम मरने वाले हो, तो आज कहो प्रभु यदि मेरी सुधि ले, यदि परमेश्वर मुझको चंगा करे, मुझको जीवन दे, तो मैं अपना संपूर्ण जीवन तेरी सेवा के लिए अर्पण करता हूं। मैं तेरे लिए जीऊंगा और तेरी सेवा करूंगा। परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेंगे और जीवन देंगे। यदि आज आप बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, तो परमेश्वर से कहिए परमेश्वर मुझको संपत्ति प्राप्त करने के लिए रोजगार दे, मुझको नौकरी दे, मुझको व्यवसाय दे। परमेश्वर मेरा नौकरी तेरे लिए होगा, मेरा व्यवसाय तेरे लिए होगा, मैं अपनी संपत्ति के द्वारा से तेरी सेवा करूंगा, जीवन भर मैं अपने संपत्ति के द्वारा से मैं तेरी महिमा करूंगा। आप प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रार्थना कीजिए। आज यदि आप अपने जीवन में बोर्ड एग्जाम्स में, इंट्रेंस एग्जाम में आप टॉप करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर से कहिए परमेश्वर ये जो नीट का जो बोर्ड है, नीट का जो दरवाजा है, परमेश्वर इसको तो क्रैश कर दे, मेरे लिए तोड़ दे। मैं डॉक्टर बनकर तेरे लिए सेवा करूंगी, मैं तेरे लिए सेवा करूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा। और परमेश्वर कहता मैं पीतल के द्वार को तेरे लिए तोड़ दूंगा। जो कठिनाई है तुम्हारे सामने, जो रुकावट है तेरे लिए, मैं उसको तोड़ दूंगा। आप कहें परमेश्वर मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर मैं तेरी सेवा करूंगा, मेरा बिजनेस तेरा बिजनेस होगा, मेरा नौकरी तेरा होगा, मेरे संपत्ति तेरे संपत्ति होगा। यदि आपके पास संतान नहीं है तो कहिए परमेश्वर मुझे आशीष दे, जो संतान मुझको देगा वो जीवन भर तेरे के लिए, तेरी सेवा के लिए मैं अर्पण कर दूंगा, अर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि क्यों परमेश्वर एक मनुष्य को चाहता था, क्यों परमेश्वर एक मनुष्य को चाहता था, क्यों परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को कबूल किया। न्यायों 21 अध्याय उसके 25 पद, न्यायों 21 अध्याय 25 पद में लिखा है, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा नहीं था, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा नहीं था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही करता था। उनका कोई लीडर नहीं था, कोई अगुवा नहीं था, कोई गुरु नहीं था, सब परमेश्वर से भटक गए थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे, जिसको जो समझ में आता था वैसा चल रहे थे। परमेश्वर एक व्यक्ति चाहता था, एक लीडर चाहता था, एक अगुवा को चाहता था जो उसके लोगों को संगठित कर दे। और ऐसी दशा में एक स्त्री आती है, वो कहती है परमेश्वर मुझको एक बेटा दे, तो उस बेटा को तेरी सेवा के लिए मैं अर्पण कर दूंगी। ऐसी प्रार्थना करें जिससे परमेश्वर की जरूरत पूरा हो जाए। उस समय का जो महायाजक था, पहला शमूएल 2:22 में लिखा है, एली महायाजक अति बुरा हो गया था, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। जो महायाजक था वो बहुत बुजुर्ग हो गया था, उसको दिखाई नहीं पड़ता था। और पहला शमूएल 2:12 में लिखा है, एली के बच्चे लुच्चे थे। एली महायाजक ने अपने बच्चों को याजक बनाया था, परंतु एली के बच्चे लुच्चे थे और उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। आज कलीसिया के जवान परमेश्वर को नहीं जानते, आज मसीह समाज के बच्चे पर यीशु मसीह को नहीं जानते। आज कलीसिया के बच्चे कैसे हैं? बाइबल कहती है एली के बच्चे लुच्चे थे। होप्नी और पिनहास महायाजक एली के बच्चे थे।
परमेश्वर के तंबू में रहते थे, फिर भी वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। आज मसीह परिवार में, मसीह संगति में रहते हुए भी लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे। जो घर के लोग हैं वो परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। शमूएल तो बाहर का व्यक्ति है, हन्ना तो बाहर की है। अब बाहर के लोग आकर सेवा कर रहे हैं, अन्य जाति के लोग आकर प्रभु के भवन में सेवा कर रहे हैं। तब शमूएल तंबू में आकर याजक के समान सेवा करने वाला बाहरी व्यक्ति था। होपनी और पिनहास तंबू में थे, महायाजक के बेटे थे, उसके पिता ने उसको याजक बनाया था, परंतु वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। एली के पुत्र लुच्चे थे। इसका क्या मतलब है? वे दुष्ट आत्मा के पुत्र थे, शैतान के संतान थे। यहां पर परमेश्वर की योजना लगभग समाप्त हो गया है। जो याजक है वो बुढ़ा हो गया है, उसके बच्चे लुच्चे हैं, कोई उनका राजा नहीं है, जिसको जो समझ में आता वैसा चल रहा है। होपनी और पिनहास का विचार ऐसा है कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, और उनको परमेश्वर को जानने में कोई रुचि नहीं था। पहला शमूएल 2:22 में लिखा है, वे सांसारिक व्यक्ति थे, उनके विचारों में प्रभु के लिए कोई जगह नहीं था। होपनी और पिनहास पूरी तरह से सांसारिक थे। आज बहुत सारे लोग बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने पर यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, बिना यीशु मसीह को जाने प्रभु की आराधना कर रहे हैं, बिना यीशु मसीह को जाने प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। होपनी और पिनहास के समान केवल उनको संसारिक आशीष से चाहिए, संसार के सुख सुविधा उनको चाहिए। और पहला शमूएल 3 के पहला पद में लिखा है, यहोवा का वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। और पहला शमूएल 2:17 में लिखा है, यहोवा का भेंट का तिरस्कार करते थे। बहुत ही बुरी परिस्थिति है। उनका कोई राजा नहीं था, उनका महायाजक बुजुर्ग हो गया है, उनको दिखाई नहीं देता है, महायाजक के बच्चे लुच्चे हैं, परमेश्वर का वचन दुर्लभ है, दर्शन नहीं मिलता है, और लोग यहोवा को भेंट का तिरस्कार करते थे। और ऐसे समय में हम पाते कि परमेश्वर की योजना लगभग पूरी समाप्ति की ओर है। इस्राएल के 12 गोत्र में से एक भी सही नहीं था। और ऐसी स्थिति में एक स्त्री हन्ना परमेश्वर के पास आती है और एक प्रतिज्ञा करती है, परमेश्वर यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं जीवन भर तेरी सेवा के लिए उसको अर्पण कर दूंगी, वो तेरा दास होगा, वो तेरे काम करेगा, तेरी योजना को आगे बढ़ाएगा। हम हन्ना के समान ऐसी प्रार्थना करें जिससे परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरा हो जाए। यदि आप बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, तो आप परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू दसवंश, बाइबल कहती है दसवंश मेरे भंडार में ले आओ, परमेश्वर मैं अपनी संपूर्ण सैलरी तुझे दूंगा, मेरा पूरा नौकरी तेरे लिए होगा, मैं अपनी संपत्ति के द्वारा से तेरी सेवा करूंगा। परमेश्वर आपके लिए पीतल के द्वार को तोड़ देगा, बंद दरवाजे तोड़ देंगे और आपके लिए नौकरी के दरवाजे खुल जाएंगे। परमेश्वर को अपना जीवन सौंपें ताकि आपके द्वारा से परमेश्वर की योजना पूरा हो जाए। ऐसा निर्णय लें जिससे परमेश्वर की इच्छा पूरा हो जाए, ऐसा निर्णय लें जिससे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई रोक नहीं सकता है, आश्चर्यक्रम होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार बनेंगे। परमेश्वर मुझ में और आप में होकर अपने आप को प्रकट करेगा। शैतान परमेश्वर के परिवार को नाश करना चाहता है, शैतान मसीहों को नाश करना चाहता है, सेवकों को नाश करना चाहता है। परमेश्वर अपना नियम कभी नहीं बदलता, परमेश्वर कभी निराश नहीं होता, परमेश्वर कभी वापस नहीं लौटता। परमेश्वर ने जो कहा है उसको पूरा करेगा। जब परमेश्वर ने कहा मैं स्त्री के वंश के द्वारा से आऊंगा और शैतान तेरे सिर को कुचलूंगा, यदि परमेश्वर को शैतान को हराना है तो शैतान के क्षेत्र में जाना आवश्यक है। उसको स्त्री के वंश के द्वारा से आना था, उसको एक परिवार चाहिए था जो उसका ज्ञान रखे और जो एक धर्मी परिवार हो। वहां पर हन्ना आती है और हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती है, पिता मुझे एक पुत्र दे तो मैं उस पुत्र को तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित कर रहा है, क्योंकि इस संसार में शैतान ईश्वर बन बैठा है और परमेश्वर के परिवार को नाश कर रहा है, परमेश्वर के घराने को उजाड़ रहा है, सेवकों को नाश करना चाहता है। शैतान के द्वारा से सारे मानव जाति, शैतान आदम के द्वारा से सारे मानव जाति पर अधिकार कर लिया था और इसलिए परमेश्वर को दूसरा आदम बनकर आना पड़ा। दूसरा आदम नियम के अनुसार आया और सारे मानव जाति के लिए पाप का जुर्माना, पाप का दंड भुगता और मानव जाति को जीवन में छुटकारे को लेकर के आया। मनुष्य अपनी आत्मा में मरा हुआ था,
शैतान का गुलाम था, और इसलिए मानव जाति को छुटकारा देने के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता था। मनुष्य जाति परमेश्वर के राज्य में नहीं था, मनुष्य परमेश्वर के राज्य में नहीं था, परमेश्वर का संपत्ति भी नहीं था। आदम ने सब कुछ शैतान को बेच दिया था, पाप और मृत्यु के गुलाम बन गए थे, और गुलाम स्लेव मार्केट में एक नीलामी के लिए उसको रख दिया गया था। जो मानव जाति को छुड़ाना चाहता है उसको स्वयं मरना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने सबसे बड़ी बोली लगाया, मैं आऊंगा मनुष्य के छुड़ाने के लिए, मैं उनके लिए अपना प्राण दूंगा। और इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, और इसलिए तुम अपनी देह के द्वारा से परमेश्वर की सेवा करो, क्योंकि तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमको दाम दे करके छुड़ा लिया है, अब हम परमेश्वर के हैं। और इस नए साल में कहे, परमेश्वर मेरा जीवन तेरे लिए है, मेरा परिवार तेरे लिए है, मेरा नौकरी तेरे लिए, मेरा व्यवसाय तेरे लिए, मेरे संसाधन तेरे लिए, मैं तेरे लिए जीऊंगा। और मेरा परिवार जो तूने मुझे दिया है, मेरे बच्चे जो तूने दिया है, ये इस्राएलियों के लिए आपकी ओर से, सारे मानव जाति के लिए आपकी ओर से साइन एंड वंडर्स होगा, चिन्ह और चमत्कार होगा। हमारे जीवन में लोग परमेश्वर को देखेंगे, और तू आशीष का मूल ठहरेगा, तेरे द्वारा सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे। मानव जाति परमेश्वर का था, मानव जाति परमेश्वर का था। परमेश्वर ने मानव को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, उसको वापस लाने के लिए जो भी कीमत चुकाना था प्रभु ने चुकाया और कहा पूरा हुआ। मानव जाति परमेश्वर का था, और इसलिए उसको शैतान से वापस लेना था। यदि मानव जाति परमेश्वर का नहीं होता तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं छीनता, परंतु मानव जाति परमेश्वर का था। आदम परमेश्वर का पुत्र था, सारे मानव जाति परमेश्वर के पुत्र थे, और इसलिए परमेश्वर ने उसका दाम चुकाया। शैतान से जबरदस्ती छीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, नहीं तो शैतान परमेश्वर की धार्मिकता पर उंगली उठाता। परमेश्वर ने कहा, आदम मेरा है, सारे मानव जाति मेरा है, उन्होंने गुनाह किया है, मैं उनको प्रेम करता हूं, मैं उनको क्षमा करूंगा, उनको मैं बहाल करूंगा, मैं उनको पुनर्स्थापित करूंगा, मैं उनको वापस लाऊंगा, उनके अधर्म को मिटा दूंगा, उनके गुनाह को मैं ढांप दूंगा, उनके पाप को मैं पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर कर दूंगा, मैं उनको नया कर दूंगा। और यदि आज इस नए साल में यदि आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते, परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देते, परमेश्वर के समीप आते, उसके वचन को ग्रहण करते, तो बाइबल कहती है अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पौलुस कहता है, सो अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। हमारा जीवन नया हो गया है, हमारा जीवन नया हो गया है। अब हमारा जीवन प्रभु का जीवन है। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। अब हम वैधानिक रीति से परमेश्वर के संतान हैं। उगाऊ पुत्र के समान पश्चाताप करके लौट आए परमेश्वर के पास। परमेश्वर गले लगाने के लिए तैयार है, हमारे जीवन में हमको पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार है, हमको आशीष देने के लिए तैयार है। छुटकारा हमारे लिए प्रभु ने किया है, उसे स्वीकार करें। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तो नया जन्म के साथ ही परमेश्वर का जीवन, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता और संपूर्ण आशीष, पवित्र आत्मा और भरपूरी, ये सब हम प्राप्त कर लेते हैं। आज कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, मैं तुझे अपना जीवन का व्यक्तिगत उद्धार करता हूँ, प्रभु स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह तू मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, मैं तुझे अपना जीवन का व्यक्तिगत उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करता हूँ। और प्रभु कहता है, मैंने तेरे लिए तेरे अधर्म को ढांप दिया है, तेरे पाप को मिटा दिया है, मैंने तुमको माफ़ कर दिया है, अब तू मेरा पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और प्रभु कहता है, मैं तुमको आज से आशीष दूंगा, आज से मैं तुमको आशीष देना आरंभ करूंगा, मैं अपने आशीष को आज्ञा दूंगा और तुम बहुतायत की आशीष अपने आत्मा, प्राण और शरीर में प्राप्त करोगे। जैसे जैसे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते जाएंगे अंधकार मिटता जाएगा, जैसे जैसे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते जाएंगे उजियाला होता जाएगा, जैसे जैसे आप प्रभु के पीछे चलते जाएंगे आप आशीषित होते जाएंगे और भरपूर होते जाएंगे और आपके द्वारा से उजियाला इस पृथ्वी पर फैलने लगेगा, परमेश्वर का ज्ञान फैलने लगेगा और लोग शैतान के परिवार से निकल निकल के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते जाएंगे। बहुत सारे लोग नरक की आग से निकलकर जीवन में प्रवेश करेंगे। सो परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम प्रभु के पीछे चलें,
प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, मेरी आवाज़ पहचानती है, मेरे पीछे चलती है, मैं उसको जीवन देता हूँ, बहुतायत का जीवन देता हूँ, और कोई उसको मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा, कोई मेरे हाथ से उसको नाश नहीं कर पाएगा। मैं उनके साथ में रहूँगा, मैं उनको सुरक्षा प्रदान करूँगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। हम इस समय मसीह गीत संग्रह में गीत नंबर 367 367 नंबर गीत को हम गाएंगे। प्रभु तेरा हूँ, तेरा प्रेम पहचानता हूँ, और सामने आकर अपना भेंट हम प्रभु को अर्पित करेंगे। मेरी लालसा है कि मैं विश्वास से जाके तेरे पास रहूं। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वाचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह अपने घायल पांजर पास। आत्मिक शांति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कर स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह अपने घायल पांजर पास। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महाआनंदित हूं। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह अपने घायल पांजर पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह अपने घायल पांजर पास। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर को प्राप्त करें, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें, भरपूरी को प्राप्त करें, और हम अपने खोए हुए आशीष को हम पुनः प्राप्त कर लें। यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय 12-13 पद में लिखा है, वो अपने घर में आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। और वे मांस और लहू के द्वारा से नहीं परंतु आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से स्वर्ग से नया जन्म को प्राप्त किया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप अद्भुत युक्ति करने वाला,
पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है। आप इमानुएल हैं, आप यीशु है, आप हमारा उद्धार करता है। हम अपना जीवन तुझे सौंपते हैं प्रभु। अपने क्रूस से बहे हुए लहू से, वाचा के लहू से हमको ढांप ले, लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर, और हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को आप जीवन प्रदान करें, बहुतायत का जीवन प्रदान करें। धन्यवाद यीशु मसीह, तू हमारा प्रभु है, तू सारे पृथ्वी का प्रभु है, पूरे स्वर्ग का प्रभु है, तू अधोलोक का प्रभु है, तू तीनों लोकों का प्रभु है। हम इस नए साल में पिता परमेश्वर, हम अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपना शरीर, अपने मन, अपनी इच्छा, अपनी भावनाएं, अपने सोच, अपना विचार, अपना परिवार, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपने जीवन का सब कुछ प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन का स्वामी तू है। हमारे जीवन में तेरा राज्य आए, हमारे परिवार में तेरा राज्य आए, हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे व्यवसाय में, हमारी नौकरी में तेरा राज्य आए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि तूने पिता परमेश्वर इस्राएल के लिए, मसीह समाज के लिए, अन्य जातियों के लिए साइन एंड वंडर्स, चिन्ह और चमत्कार ठहराया है, ताकि लोग हमारे जीवन में तुझको देखें, तुझको सुने, तुझको प्राप्त करने पाए। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासियों को अपनी आत्मा का एक नया अभिषेक दे परमेश्वर। जो जिनके सामने में दरवाजा बंद है पिता, उनके बंद दरवाजे यीशु के नाम से टूट जाए। हर एक बंद दरवाजा यीशु के नाम से टूट जाए। जिनके लिए कोई मार्ग नहीं खुला है, यीशु मसीह के नाम से इस नए वर्ष में नया मार्ग खुल जाए। और परमेश्वर आपने कहा मैं तुमको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त धन तुमको दूंगा। परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ताकि तेरे लोगों के द्वारा से परमेश्वर तेरी महिमा हो। प्रभु दया कर, हर एक विश्वासी उठकर परमेश्वर तेरे पीछे चलने का निर्णय लेने पाए। आपने कहा उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जाते जाते के ऊपर में अंधकार छाया रहेगा, परंतु यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा, क्योंकि तूने मुझे चुना है, क्योंकि तूने मेरे पीछे चलने का निर्णय लिया है। और इसलिए मैं तुझको आशीष देता जाऊंगा। मैं अपने आप को तेरे जीवन में प्रकट करूंगा। मैं तुझके अपने आप को तेरे द्वारा से इस संसार में प्रकट करूंगा। सारी जाति के लोग तेरे द्वारा से आशीष पाएंगे, तो आशीष का मूल ठहरेगा। प्रभु दया कर परमेश्वर, अनुग्रह कर प्रभु, ताकि हर एक विश्वासियों के द्वारा से तेरी महिमा हो। जो वचन पे बीज बोया गया है, हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। परमेश्वर जो आशीषें आपने हमको दिया, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को आप ग्रहण करें। और परमेश्वर जिन्होंने अपने कमी घटी में से भेंट अर्पित किए, उनकी सेवाओं को आशीषित कर, उनके कामों को तो आशीष दे, उनका भंडार को भरपूर कर, उनके पर्स को, उनके बैंक बैलेंस को परमेश्वर तो आशीषित कर। उनका कटोरा इस नए साल में उमड़ने पाए, छलकने पाए, और परमेश्वर बहुतायत की आशीष अपने आत्मा, प्राण और शरीर में प्राप्त करने पाए। उनकी मनोकामनाएं, उनकी मन की प्रार्थनाएं, उनकी मन की इच्छाएं इस नए साल में पूरा होने पाए। प्रभु आपने कहा रोना, पीटना और आंसू बहाना बंद करो, क्योंकि मैं इस नए साल में तुम्हारे कामों का प्रतिफल देने जा रहा हूं। प्रभु हर एक विश्वासियों का, उनकी सेवा का प्रतिफल आप प्रदान कीजिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के आराधना के लिए, आज के वचन के लिए, तेरी बहुतायत की आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गदूतों के सेवा के लिए जो हमारे चारों ओर है। आपने हमको जीवितों के बीच में रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी, उन प्रियों को भी मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ कि पिता परमेश्वर वो नया जीवन प्राप्त करे और बहुतायत का जीवन प्राप्त करे। जो बीमार स्वस्थ है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा, चंगाई और जीवन प्राप्त करे। जो बेरोजगार है, वो रोजगार प्राप्त करे। जो संतानहीन है, वो संतान प्राप्त करे। जो विवाह की योग्य है, वो अपने जीवन में सुयोग्य जीवन साथी को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर जो बच्चे अपने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में है, जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में है, यीशु मसीह के नाम से उनके पिता परमेश्वर वो मेरिट लिस्ट के साथ में उत्तीर्ण होकर तेरी महिमा करने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख की प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से,
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।